Okay, student. Today we will learn 12th class account. In account, we are learning partnership chapter first. In first chapter of partnership, we have to make profit and loss appropriation account. Okay. Now we are learning about profit and loss appropriation account. In profit and loss appropriation account, credit side, first of all, we will write by balance BD. Means which balance we will write here? Profit. Okay. Which balance? Profit. If the profit and loss account give us loss, so we will write in debit side. In which heading? To balance BD. Okay. If the profit and loss appropriation account give us profit, so we will write in credit side. If the profit and loss account give us loss, so we will write in debit side. In heading balance, by balance BD and to balance BD. So next we will write in credit side by interest on drawing. Interest on drawing, not drawing. Okay, remember this. We have to remember, we will not write here to by drawing. We will write only interest on drawing. Then we will write by goods withdrawn by partners. If the partners withdrawn goods, so here we will write, otherwise we will not write. Then we will write here by loss transferred to partners capital or current account. If the profit and loss appropriation account give us loss, so we will write in credit side. It will come in balancing figure. Okay, we have to take out this amount in balancing figure. Then we will come in debit side. In debit side, we will write to interest on partners capital. If the partners get interest on capital, so we will write here to all partners name. First of all, we will write here all partners name. In heading to interest on partners capital account. Then we will write here to salary to partners. If the partners get salary, so we will write here to salary to partners and partners name also. We have to write here. Then bonus to partners. If the partners are getting bonus, so we have to write here. Then interest on partners loan. If the partners give loan in partnership, so he will take interest on loan, minimum 6%. We have learned about interest on loan. So here we will write to interest on partners loan. Then we will take out profit or loss in balancing figure. If the profit and loss account give us profit, so we will write in debit side. If loss come, so we will write in credit side. The both amount will come in balancing figure. Means profit and loss will come in balancing figure. How we will take out balance means profit or loss? First of all, we will count. We will add credit side amount, total amount. Then we will less debit side amount. अगर डेबिट साइड की अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट साइड की कम है, तो हमें लॉस आएगा. और लॉस को किस हेडिंग में लिखेंगे? बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट. सेम अगर क्रेडिट साइड की ज़्यादा आ रही है और डेबिट की कम आ रही है टोटल, तो हम किस हेडिंग में लिखेंगे? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट. Okay, it's completed our profit and loss appropriation account format.
इसी फॉर्मेट में हमें पूरे चैप्टर में जब भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का बोले तो हम इसी फॉर्मेट में बनाएंगे। और अगर पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ सैलरी देने का बोला है तो हम सैलरी देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दिन, मतलब मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए। जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स लिखना रहे। ओके, नाउ कंप्लीटेड। ओके, इन फर्स्ट चैप्टर we will solve today question number first. In first question number first, this information has been given. A and B are partner with rupees 15 lakh and 10 lakh capital. Profit sharing ratio 3:2. In the profit sharing ratio 3:2, they both are partner. Okay. Additional capital they introduced 1st July 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टली, मतलब दोनों ने एडिशनल कैपिटल लगाई है 3 लाख और 2 लाख रुपए से पार्टनरशिप में। कैपिटल तो 15 लाख और 10 लाख रुपए लगाई है, इसके अलावा एडिशनल कैपिटल भी लगाई है इन्होंने, पर लगाई कब है? 1 जुलाई को 3 लाख और 2 लाख रुपए। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर दोनों ने ड्राइंग भी कर रखा है 30,000 और 20,000 रुपए। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग here is given directly interest on drawing 1800 and 1200, means we have not to calculate interest on drawing. Here is given directly interest on drawing. Okay, salary to A means here only A will get salary. Okay, 20,000. Commission, the both partner will get 10,000 and 7,000 commission. Okay, share in loss, here is given loss, so we have to write loss. Okay, according to profit and loss account. ये जो लॉस दिया है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अनुसार 60,000 और 40,000 रुपए दोनों को लॉस हुआ है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी हैव टू गिव 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, 5% ऑन कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल ऑल्सो। इसमें ये जो 5% जो दिया है हमें क्वेश्चन में, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कैपिटल के ऊपर भी देना है और एडिशनल कैपिटल के ऊपर भी देना है हमें 5%। ये इंफॉर्मेशन दी है हमारे क्वेश्चन में। नाउ हियर वी हैव टू मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली, बट हियर इज गिवन 2 कंडीशन। फर्स्ट, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, अगर पूंजी स्थायी रहे उस कंडीशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो अगर कैपिटल फिक्स्ड रहे तब हम 2 अकाउंट बनाते हैं, partners capital account and partners current account also. I have taught you in last video. Okay, so you have to see that videos. Partners capital account, first of all we are making partners capital account. In partners capital account only 2 amount we will write. First, by balance BD means कौन सा बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मतलब जो स्टार्टिंग में दोनों पार्टनर्स ने लगाया था ओपनिंग में, यानी ए ने लगाया था 15 लाख रुपए और बी ने लगाया 10 लाख रुपए, वो बैलेंस लिखना है हमें क्रेडिट साइड में। इसके अलावा अगर एडिशनल कैपिटल दी है दोनों ने तो लिखेंगे, नहीं तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक, तो एडिशनल कैपिटल दोनों ने लगाई है 3 लाख और 2 लाख रुपए। और ए के टोटल मतलब डेबिट साइड में तो कुछ इसमें है नहीं। यहाँ पर डेबिट साइड में अगर परमानेंटली विड्रॉल करते हो गुड्स या असेट्स तो हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं निकाला उन्होंने, तो हम डायरेक्टली ए और बी के टोटल कॉलम का टोटल करेंगे और इस साइड में लिख देंगे बैलेंस शीट फिगर में, मतलब उधर का टोटल किया और डायरेक्टली इधर लिख दिया। कितना हुआ? 15 लाख और 3 लाख 18 लाख। तो यहाँ पर हेडिंग में लिखेंगे हम टू बैलेंस CD 18 लाख रुपए। देन अगेन विल डू 10 लाख और 2 लाख 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए हमने यहाँ लिख दिया और टोटल कर दिया 18 लाख और 12 लाख। दिस इज अवर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली वी हैव टू राइट ओनली 2 अमाउंट्स। नाउ वी आर मेकिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, इन दिस कंडीशन वी हैव टू मेक, आई हैव टोल्ड यू 2 अकाउंट बनाएंगे हम इसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन पार्टनर्स करंट अकाउंट वी विल राइट बाय सैलरी। सैलरी लिखना है हमें, मतलब इसमें क्रेडिट साइड में वो सारी अमाउंट आती है जो कि पार्टनर्स को मिलेगी। कहां से?
पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप से ए को मिलेगी सैलरी, तो हम लिखेंगे बाय सैलरी, ठीक है, कितनी 20,000 रुपये। इसके बाद में बाय कमीशन, कमीशन दोनों को मिलेगा, दोनों को दिया जाएगा। हियर इज गिवन इन क्वेश्चन 10,000 एंड 7,000, ठीक है, तो हमें दोनों को इसमें देना है 10,000 7,000 रुपये। देन वी विल राइट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी हैव टू कैलकुलेट ऑन कैपिटल, मीन्स फॉर एस कैपिटल हियर इज 15 lakh, 5% ऑफ 15 lakh 75,000 एंड 5% ऑफ 10 lakh 50,000, ठीक है। 5% निकालना है 15 लाख का 75,000 रुपये, 5% निकालना है 10 लाख रुपए का 50,000 रुपये हो गया। फिर इसके बाद में इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल वी हैव टू कैलकुलेट हियर ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितनी कितनी लगाई है दोनों ने, 3 लाख और 2 लाख रुपए। कब लगाई है, 1 जुलाई को। हम ये जो ब्याज देंगे इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, ये आधे साल का देंगे। क्यों देंगे आधे साल का, क्योंकि यहां पर दिया है 1 जुलाई। ये दोनों ने जो पैसा लगाया है ये 1 जुलाई को लगाया, तो 1 जुलाई से दिसंबर तक कितने महीने होते हैं, 6 महीने। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने, मतलब आधे साल का। आधे साल का यानी कि 3 लाख का, ये जो 3 लाख रुपए लगाए इन्हें, 3 लाख का 5% निकाला हमने। 3 लाख का 5% 15,000 रुपये। 15,000 का आधा करेंगे तो 7,500 रुपये, ठीक है। आधा क्यों किया हमने, क्योंकि 1 जुलाई को लगाया है पैसा एडिशनल कैपिटल के रूप में, ठीक है। सेम एज इट इज बी का भी यही करेंगे हम। बी ने कितने लगाए, 2 लाख रुपए। 2 लाख का 5% निकालेंगे तो 10,000 रुपये, ठीक है। 2 लाख का 5% 10,000 रुपये। 10,000 का आधा, 10,000 तो पूरे साल का इंटरेस्ट है, आधा कितना होगा 5,000 रुपये। तो मैंने लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल 5,000 रुपये, ठीक। दर अब डेबिट साइड में आते हैं हम। क्रेडिट में यही चीज मिलेगी इन सभी को, दोनों को 4 अमाउंट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, ओके। इन डेबिट साइड वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल टू ड्रॉइंग। हियर वी हैव टू राइट ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑल्सो, ओके। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बोथ अमाउंट वी विल राइट हियर। टू ड्रॉइंग 30,000 और 20,000 रुपये, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हियर इज गिवन इन क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डायरेक्टली they have given us 1,800 and 1,200, so we will write here 1,800 and 1,200, means we will not calculate here interest on drawing. Then to share in loss, here is given share in loss। अगर लॉस दिया है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, अगर प्रॉफिट देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग तो हम इसे क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, ठीक। इसके बाद में हमें क्या करना है, ए के कॉलम का टोटल करना है और इधर डेबिट साइड का भी करना है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है और डेबिट साइड का कम आता है तो कम साइड वाली साइड में लिखेंगे हम टू बैलेंस सीडी, मींस डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस सीडी और ये अमाउंट जो कम वाली अमाउंट थी ज्यादा में से घटा देंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 20,700 रुपये। सेम वही प्रोसेस अगेन बी के लिए भी करेंगे हम। बी के टोटल किया और इधर का टोटल करके माइनस कर दिया तो यहाँ आया 800 रुपये। ये आया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया था करंट अकाउंट का, हमें क्लोजिंग बैलेंस बताना है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट आ गया हमारा, ओके। इन दिस कंडीशन वी हैव टू मेक ओनली 2 अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ अंतर ये है कि इसमें बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं, मतलब जो बैलेंस लगाते हैं वो, और एडिशनल कैपिटल 2 अमाउंट, मतलब बैलेंस लिखना है सिर्फ इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और पार्टनर्स करंट अकाउंट में सारी चीजें लिखेंगे जो जो ये प्राप्त करेंगे पार्टनरशिप से, ठीक है, यहां लिखा। और डेबिट साइड में जो जो इनको देना है पार्टनरशिप में रिटर्न करना है वो डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक। अब हम करने वाले हैं सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे उसमें हम। मतलब ये है अगर सेकेंड कंडीशन दी है आपको तो मैं ओरली आपको समझा देता हूं, उसके बाद में हम आगे सॉल्व करेंगे सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को। व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएट, ओके, फ्लक्चुएटिंग दिया है इसमें,
ठीक है, परिवर्तनशील रहे अगर, तो उस कंडीशन में हम सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वी हैव टू मेक इन दिस कंडीशन, फ्लक्चुएटिंग कंडीशन। हाउ वी विल मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमें सिर्फ इन दोनों अकाउंट को मर्ज करना है, जोड़ना है। इस कंडीशन में एक अकाउंट बनाना, तो दोनों को मिला देंगे हम। मिलाएंगे किसे, ये जो बैलेंस दिया है इसमें ऐड कर देंगे, और कुछ नहीं करना। ठीक, सो नाउ लेट्स start our second condition. Okay, now student, we are making partners capital account under fluctuating condition. Okay, परिवर्तनशील, जब पूंजी परिवर्तनशील रहे तो उस कंडीशन में सिर्फ हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने बताया आपको कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे हम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट को दोनों को मिलाकर एक अकाउंट बना देंगे, और वो कहलाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट बाय बैलेंस BD 15 lakh and 10 lakh they introduced. Okay, 15 lakh and 10 lakh by additional capital 3 lakh and 2 lakh. Here is given in question. By then we will write by interest on capital. Okay, A is getting here interest on capital 75,000 and B is getting 50,000. By then we will write by interest on additional capital. A is getting 7,500 and B is getting 5,000. Then we will write by salary. Only A is getting salary, here is given 20,000, and then we will write by commission. Both partners are getting commission 10,000 and 7,000. Okay, after commission we will come in debit side, and in debit side we will write drawing. Here is given drawing 30,000 and 20,000 and interest on drawing 1,800 and 1,200. Then share in loss 60 and 40,000. ओके, देन इसके बाद में टोटल करेंगे ए के अमाउंट का और बी के अमाउंट को माइनस करेंगे उसमें से, मतलब सॉरी ए के अमाउंट का टोटल करेंगे और ए का ही सर से माइनस भी करेंगे। तो ये आएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD। टोटल करें 10 और 20 30,000, 30 1,05,000, 1,12,500 और 18, तो ये आ गया टोटल हमारा, और इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 18,20,700 रुपये। ठीक, इसके बाद में इधर आएगा 12,08,000 रुपये। डिफरेंस निकालना हमें और नीचे टोटल भी करना है। ठीक, इधर का टोटल किया तो आया हमारा 30,000 से 30,500, 18 लाख और now we are going to solve question number 3rd. In question number 3rd, given us two partners A and B are partner in the ratio 7:3. Okay, and their capital is 1,500 and 1,000. Then we have to give interest on capital 5% on 1,500 and 1,000. B's
is entitled to salary of rupees 240 per annum, but which has not been withdrawn. Okay, in question has given profit in question 800. Then we have to give commission to manager 3:1/8% on 800. मीन्स हमें क्वेश्चन में दो पार्टनर दिए हुए हैं, दोनों 1500 और 1000 रुपये से पार्टनरशिप स्टार्ट किए दोनों ने, और 7:3 के रेशो में प्रॉफिट को शेयर करते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोथ विल गेट 5%. ओके, एंड बी को सैलरी देना है 240 रुपये पर ईयर, बट वो पैसा उसने नहीं निकाला है. प्रॉफिट गिवन अस 800 रुपीज, एंड देन वी हैव टू गिव मैनेजर कमीशन. वी हैव टू गिव टू कमीशन टू मैनेजर. कितना? 25/8% और 800. इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट ही बनाना है. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल we will write in credit side in profit and loss appropriation account by balance will be profit. यहाँ पर हमें सबसे पहले प्रॉफिट लिखना है. ठीक है, 800 रुपये प्रॉफिट दिया है, लिखा हमने. इसके बाद में 2 साइड में आएंगे हम. उधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं हम. यहाँ पर नहीं दिया है कुछ भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ठीक है, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया तो कुछ भी लिखेंगे क्रेडिट साइड. इन क्रेडिट साइड डेबिट साइड वी विल राइट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल. ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट इस पर कैपिटल पर. दोनों ने 1500 और 1000 रुपीज़ लगाया है और इंटरेस्ट देना है 5%. 5% निकालेंगे दोनों का हम, तो ए का आएगा 75 रुपीज़ और बी का 50, 125 इंटरेस्ट होगा. हमें इसके बाद में यहाँ पर जो बी को सैलरी देना है, ये जो प्रॉफिट, हमें हर क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट दिया रहेगा कौन सा प्रॉफिट है, आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या बिफोर. इन क्वेश्चन हैज गिवन अस दिस प्रॉफिट इज आफ्टर गिविंग सैलरी टू बी बट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये प्रॉफिट वो है, प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के पहले का प्रॉफिट है ये, और सैलरी देने के बाद का. मतलब इस प्रॉफिट में से, मतलब वो जो हमने 800 रुपये लिखा उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं माइनस किया गया. तो हमने लिखा यहाँ पर सैलरी माइनस कर दी, इसलिए हम सैलरी नहीं यहाँ पर नहीं लिखे. इसके बाद में आता है क्वेश्चन मैनेजर्स कमीशन. नाउ वी हैव टू गिव हियर टू कमीशन टू मैनेजर ऑन 800 मीन्स ऑन प्रॉफिट. कितने परसेंट? 25/8%. ठीक है, 8% के लिए हम नीचे फॉर्म में 100 लिखेंगे. ये पूरा कट गया. मैनेजर को कमीशन मिला 25 रुपीज. सो नाउ वी हैव टू टेक आउट प्रॉफिट और लॉस. सो हियर विल कम प्रॉफिट मीन्स 800 में से हमें 150 रुपये माइनस करना है. हम लिखेंगे यहाँ पर टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो विच दे हैव डिसाइडेड मींस 7:3. कितना आया प्रॉफिट? 800 में से 150 माइनस करके 650. 650 को हमें डिवाइड करना है 7/10 और 3/10. ठीक है, 10 से 10 माइनस हो गई. 455 रुपये का ए को मिला.
₹195 बिल, टोटल 190 मीन्स टोटल 650 रुपीज, और नीचे टोटल भी करना है ना 800 रुपीज. Okay, here will come 800 and 800. This both side will be equal. Okay, we have completed this question. Question number 5. हमें इस क्वेश्चन में से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना था, जो कि हमने बना था.